میری طرف سے تمام دوستوں کو السلام علیکم۔ دوستو، آج میں اپنے کچھ دوستوں کی فرمائش پر آپ لوگوں کو سیر کروانے والا ہوں دنیا کے ایک پر اسرار ملک شمالی کوریا کی۔ شمالی کوریا کی ویڈیو بنانے کا ہم سے بہت سے دوستوں نے کہا تھا، مگر مسعود بھائی جو ہمارے یوٹیوب چینل کے ممبر ہیں، انہوں نے اس ملک کی ویڈیو بنانے کے لیے بہت اصرار کیا تھا۔ تو آج کی یہ ویڈیو میں مسعود بھائی کے نام کرتا ہوں۔ آج میں شمالی کوریا کے بارے میں ان تمام حقائق سے بھی پردہ اٹھانے کی کوشش کروں گا جو آپ لوگ شاید آج سے پہلے نہیں جانتے ہوں گے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ تمام نئے آنے والے دوستوں کو جانی ٹی وی میں خوش آمدید۔ دوستو، اگر آپ ابھی تک یوٹیوب پر موجود ہمارے چینل پر نئے ہیں تو جلدی سے ہمارے چینل جانی ٹی وی کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری طرف سے ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ لوگوں کو بآسانی موصول ہو سکے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، ہم نے جنوبی کوریا کی ویڈیو میں آپ لوگوں کو کوریا کی تاریخ بتا دی تھی، اس لیے ہم کوریا کے قدیم ادوار کی باتوں کو ترک کرتے ہوئے جاپان سے آزادی کے بعد کی باتوں کا تذکرہ کریں گے۔ یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ 6 اور 9 اگست 1945 کو امریکہ نے جاپان پر ایٹمی حملے کیے تھے، جس کے بعد جاپان کی طاقت جاپان کے مقبوضہ علاقوں سے ختم ہو گئی تھی اور جاپان کے سبھی ممالک کو اسی ماہ میں آزادی نصیب ہو گئی تھی۔ بالکل اسی طرح 15 اگست 1945 کو شمالی کوریا اور جنوبی کوریا کو بھی جاپان سے آزادی حاصل ہو گئی تھی، مگر جاپان سے آزادی کے بعد ان ممالک کو جنہیں ایک ہو جانا چاہیے تھا، ایک نہ ہو سکے، جس کی بڑی وجہ امریکہ اور سوویت یونین تھا، کیونکہ جنوبی کوریا پر آزادی کے بعد سے امریکہ کا حکم چلنے لگا تھا اور شمالی کوریا سوویت یونین کے قبضے میں چلا گیا تھا۔ 1948 میں سوویت یونین نے خود مختاری شمالی کوریا کو منتقل کر دی تھی اور امریکہ نے جنوبی کوریا کو۔ اس وقت یہ صوبائی حکومتوں پر مشتمل ایک ملک تھا۔ 1950 میں کوریا جنگ کا آغاز ہوا، جس میں شمالی کوریا کو سوویت یونین کی حمایت حاصل تھی اور جنوبی کوریا کو امریکہ کی۔ اس وقت یہ دنیا کی 2 سپر پاور طاقتیں بلا واسطہ طور پر آپس میں لڑتی رہیں۔ 1953 تک جاری رہنے والی اس جنگ میں امریکہ نے شمالی کوریا پر تباہی کی وہ داستان لکھی جسے آج شمالی کوریا حکومت کی جانب سے بڑے بڑے پوسٹرز کی صورت میں پورے ملک میں دکھایا جاتا ہے تاکہ عوام کے اندر امریکہ کے خلاف جنگ کا جذبہ بیدار رہے۔ 1953 میں جنگ بندی عمل میں آئی تو یہ دونوں کوریائی ریاستیں 2 حصوں میں تقسیم ہو گئیں، جنہیں آج دنیا 2 الگ الگ ممالک سے یاد کرتی ہے۔ 3 سال تک جاری رہنے والی اس جنگ میں بیشتر ممالک نے ان دونوں ممالک کا ساتھ دیا۔ ہر کوئی جنگ عظیم دوم کا بدلہ لینے کی کوشش میں تھا، جن میں سے ایک چین بھی تھا جس نے اپنی افواج شمالی کوریا کی حمایت میں بھیجی ہوئی تھی، مگر اس وقت امریکہ چونکہ ایک طاقتور ملک تھا، امریکہ نے شمالی کوریا میں جنگ کوریا کے درمیان اس قدر تباہی برپا کی کہ شمالی کوریا میں کوئی بھی عمارت صحیح سلامت نہیں چھوڑی تھی۔ 2 منزلی عمارتوں کا تو سرے سے وجود ہی ختم کر دیا تھا۔ اس 3 سالہ جنگ میں 10 لاکھ سے زیادہ شہریوں اور فوجیوں کو موت کی نیند سلایا گیا تھا۔ شمالی کوریا سے چائنا نے اپنی افواج کا انخلاء کا عمل 1956 میں شروع کیا۔ اکتوبر 1958 میں چائنا کا آخری فوجی دستہ اور توپیں واپس چائنا جا چکی تھیں۔ یعنی اگر ہم یوں کہیں کہ شمالی کوریا کو حقیقی آزادی 1958 میں نصیب ہوئی تو یہ کہنا بھی بے جا نہ ہوگا، کیونکہ اس سے پہلے شمالی کوریا سے زیادہ غیر ممالک کی بات اہمیت کی حامل ہوا کرتی تھی۔ شمالی کوریا اس وقت ملکی آمدنی اور فیکس آمدنی کے حوالے سے جنوبی کوریا سے بہت آگے تھا۔ 1976 کے بعد سے جنوبی کوریا شمالی کوریا کے برابر آیا اور دونوں ممالک کی فیکس مجموعی آمدنی برابر ہو چکی تھی، جس کے بعد سے شمالی کوریا نے اپنا بجٹ ایٹمی پلانٹ کی طرف لگانا شروع کر دیا اور جنوبی کوریا نے وہی سرمایہ کاری جدید ٹیکنالوجی کی طرف لگانا شروع کر دی۔ آج جنوبی کوریا دنیا کے امیر ترین ممالک میں شمار ہوتا ہے، جبکہ شمالی کوریا سبھی دشمن ممالک کے لیے
खतरे की घंटी बना हुआ है। जो ममालिक एटमी ताकत बन चुके थे, उन्होंने दुनिया को आने वाली तबाही से बचाने के लिए एक मुआहिदा किया, जिसके मकसद एटमी प्लांट की रोकथाम और दूसरे ममालिक को एटम बम बनाने से रोकना था। मार्च 1993 में शुमाली कोरिया ने इस मुआहदे से निकलने का ऐलान कर दिया, जिसके बाद अक़वाम मुत्तहिदा ने शुमाली कोरिया पर इक़्तिसादी पाबंदियां लगाने की धमकी दी। तो अगले माह जून 1953 में शुमाली कोरिया ने अपना फैसला वापस ले लिया। शुमाली कोरिया कई सालों से दूरमार मिसाइल के तजर्बे करता आ रहा था। 17 दिसंबर 1999 को अमेरिका ने शुमाली कोरिया पर सफ़र की सख्तियां ख़त्म की, तो एक मुआहदे के बाद शुमाली कोरिया ने दूर मार करने वाले मिसाइल के तजर्बात रोक दिए। 2 सितंबर 2017 को शुमाली कोरिया ने हाइड्रोजन बम का कामयाब तजर्बा किया, जिसकी ताकत 1 मेगाटन थी। ये हथियार इतना छोटा है कि बासानी किसी भी मिसाइल पर सवार किया जा सकता है। आलमी इदारों ने इस तजर्बे के नतीजे में जो मसनूई ज़लज़ला महसूस किया, उसकी शिद्दत 6.3 थी। शुमाली कोरिया के अगर महल्ले वकूअ की बात की जाए तो इसके शुमाल में चीन और रूस, मगरब की जानब जनूबी कोरिया, जबकि बाकी दोनों अतराफ में सरहदें बहेरा जापान, खलीज कोरिया और बहेरा असफर से लगती हैं। प्योंगयांग शुमाली कोरिया का दारुल हुकूमत है और यही मुल्क का कदीम और अजीम तरीन शहर होने का एजाज़ रखता है, जो अपने अंदर 25 लाख से ज़्यादा अफराद को समोए हुए है। शुमाली कोरिया 1,20,540 मुरबा किलोमीटर रकबे पर फैला हुआ दुनिया का 97वें नंबर पर आने वाला बड़ा मुल्क है। 2 करोड़ 55 लाख अफराद की आबादी के साथ ये मुल्क आबादी के लिहाज से दुनिया भर में 52वें नंबर पर शुमार होता है। शुमाली कोरिया की करेंसी को शुमाली कोरियन वोन कहा जाता है, जो एक पाकिस्तानी रुपए के बदले में 8.14 आ जाएंगे। वक्त के हवाले से शुमाली कोरिया पाकिस्तान से 3.5 घंटे आगे है। शुमाली कोरिया पाकिस्तान से 5,305 किलोमीटर की दूरी पर वाक़ है, जिसका कॉलिंग कोड +850 है। कोरियन ज़ुबान शोसोनो सरकारी और मुल्की ज़ुबान का दर्जा रखती है, जबकि इंग्लिश और चाइनीज़ बोलने वालों की तादाद भी कदरे पाई जाती है। शुमाली कोरिया का नाम सुनते ही आपके जहन में तरह तरह के ख्याल आना शुरू हो जाते होंगे, क्योंकि इंटरनेट पर बेशुमार ऐसी वीडियोस दस्तयाब हैं जिनमें शुमाली कोरिया के सख्त कवानीन बताए जाते हैं। शायद आपने भी इनमें से कोई एक वीडियो देख रखी होगी। आज मैं आप लोगों को शुमाली कोरिया के बारे में ऐसी बातें बताऊंगा जिसके बाद आपको शुमाली कोरिया की हकीकत से आगाही हासिल होगी। दोस्तों, शुमाली कोरिया दुनिया का वो वाहिद मुल्क है जिसके कब्ज़े में आज भी अमेरिकन नेवी का बहरी जहाज़ है, जिसे कोरियन जंग के दौरान हासिल किया गया था। अगर आप सोच रहे हैं कि 2018 चल रहा है, तो ये बात आपको बता दूं कि यह साल सिर्फ आपके लिए है, क्योंकि शुमाली कोरिया में 105वां साल चल रहा है, जो शुमाली कोरिया के पहले सदर किम दोम संग के पैदाइश 1912 से शुरू किया गया था। ये जानकर आपको मज़ीद हैरत होगी कि किम दोम संग, जो शुमाली कोरिया के मौजूदा सुप्रीम लीडर का दादा था, 1994 में वफात पा गया था, जिसे आज भी शुमाली कोरिया का सदर होने का एजाज़ हासिल है। उसकी लाश को आज भी शीशे के एक बंद ताबूत में रखा गया है। पिछली कई दहाइयों से यही ख़ानदान शुमाली कोरिया पर हुकूमत करता चला आ रहा है और इस ख़ानदान के अलावा कोई और सोच भी नहीं सकता कि वो शुमाली कोरिया पर हुकूमत करे। शुमाली कोरिया में रहने वाले किसी भी शख्स को अपनी मर्जी के बाल बनवाने की इजाज़त नहीं, बल्कि तमाम हमामों पर हुकूमती एहलकारों की जानिब से बाल काटे जाने वाले स्टाइल के इश्तिहार लगाए जाते हैं, जिनमें मर्दों के बाल काटने के लिए 10 स्टाइल जबकि औरतों के लिए 18 स्टाइल हैं। अगर कोई इनके अलावा
कोई और हेयर स्टाइल बनवाता है तो ये एक जुर्म तस्वर किया जाएगा, जिसकी बाकायदा तौर पर सज़ा भी दी जाएगी। दोस्तों, शुमाली कोरिया में इलेक्शन तो होते हैं मगर बराए नाम होते हैं, जिसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि शुमाली कोरिया के तानाशाह, जिसे सुप्रीम लीडर कहा जाता है, हर बार 100% वोट लेकर जीत जाते हैं। यानी किसी की हिम्मत नहीं होती कि वो इनके खिलाफ वोट डाल सके। अगर कोई इनको वोट ना डालना चाहता हो तो उसे एक अलग बूथ में जाकर ये भी बताना पड़ता है कि वोट वो किस वजह से नहीं दे रहा। शुमाली कोरिया में सिर्फ 5 टीवी चैनल्स चलते हैं, जिन पर भी सिर्फ उनके सुप्रीम लीडर यानी किम जोंग अन के बारे में बताया जाता है। यानी वो लोग बाहर की दुनिया से बिल्कुल जुदा हैं। जिसे दुनिया शुमाली कोरिया के नाम से जानती है, इसका असली नाम जमहूरी अवामी जमहूरिया कोरिया है। शुमाली कोरिया के इन सख्त कवानीन की वजह से पिछले 60 सालों में 23,000 से ज़ायद कोरियन जनूबी कोरिया का रुख कर चुके हैं, मगर इन 60 सालों में सिर्फ 2 कोरियन थे जिन्होंने शुमाली कोरिया की तरफ हिजरत की। शुमाली कोरिया अपना एक अलग ऑपरेटिंग सिस्टम चला रहा है, जिसे रेड स्टार OS कहा जाता है। शुमाली कोरिया के कवानीन इतने सख्त थे, जिनमें अब कुछ हद तक नरमी भी की गई है, क्योंकि कुछ साल पहले तक शुमाली कोरिया में जुर्म करने वाले की 3 नस्लों को भी सज़ा दी जाती थी। यानी उसके बाप और उसकी औलाद को उसके जुर्म का हिस्सादार बनाया जाता था, लेकिन अब ये सज़ा ख़त्म कर दी गई है। शुमाली कोरिया के कवानीन किस कदर सख्त है, इसका अंदाज़ा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि 2013 में कोरिया के बादशाह किम जोंग अन ने अपने चचा को 120 भूखे कुत्तों के आगे डालकर मरवा दिया था। शुमाली कोरिया में इंटरनेट जैसी सहूलियात ना होने के बराबर हैं। जिन चंद हज़ार लोगों को ये सहूलियात हासिल हैं, उन पर भी इस कदर सख्ती है कि वो ज़रा सी भी गैर कानूनी वेब को ओपन करते हैं तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है। 2014 के फीफा वर्ल्ड कप में शुमाली कोरिया ने भी हिस्सा लिया था। शुमाली कोरिया के लोग बाहर की दुनिया से किस कदर दूर हैं, उसका अंदाज़ा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि इस वर्ल्ड कप में शुमाली कोरिया की टीम हार गई थी और रैंकिंग में 32वें नंबर पर आई थी, मगर टीवी चैनल्स पर यह बताया गया था कि शुमाली कोरिया जीत गई है, जिसे बेशतर अफराद ने मान भी लिया था, क्योंकि शुमाली कोरिया में फीफा वर्ल्ड कप 2014 का हर मैच 24 घंटे के वक्फे से दिखाया जाता था। शुमाली कोरिया में अगर किसी के पास से बाइबल मिल जाए या कोई जनूबी कोरिया की फिल्म देखता पकड़ा जाए या फिर वो फहश फिल्में देखता पकड़ा जाए तो इसकी सज़ाए मौत है। शुमाली कोरिया के मरहूम सदर ने 1974 में स्वीडन से 1000 गाड़ियां कोरिया मंगवाई थी, जिनका बाद में उन्होंने 1 रुपया भी अदा नहीं किया था। वैसे भी शुमाली कोरिया में कारों की तादाद बहुत ही कम है। कारें रखने की इजाज़त फौजियों और सरकारी मुलाजमीन को ही हासिल है। शुमाली कोरिया में आप लोगों को नीली जीन्स भी नज़र नहीं आएगी। सबका लिबास अपने बादशाह किम जोंग अन जैसा मिलता जुलता होता है। नीली जीन्स ना पहनने की बड़ी वजह यह है कि वो लोग सोचते हैं कि ये अमेरिकी कल्चर को फ़रोग देती है। नीली जीन्स तो दूर, आपको शुमाली कोरिया में जीन्स ही नज़र नहीं आएगी, क्योंकि शुमाली कोरिया में जीन्स बनाई ही नहीं जाती। शुमाली कोरिया के लोग अमेरिका से किस कदर नफरत करते हैं, इसका अंदाज़ा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि मुल्क भर में अपनी ताकत को ज़ाहिर करने वाले इश्तिहारात लगाए जाते हैं और कोरिया जंग के दौरान अमेरिकी मज़ालम की तस्वीर कशी भी की जाती है और ये भी बताया गया है कि अमेरिका अब तुम छेड़खानी नहीं करो वरना तुम्हें सफाई हस्ती से मिटा दिया जाएगा। यानी अवाम के अंदर अमेरिका का डर नहीं बल्कि एक जज्बा उभारा जाता है कि अगर कभी जंग हो पड़े तो इसी जज्बे के साथ हर शहरी अमेरिका के खिलाफ एक फौज का किरदार अदा करे। शुमाली कोरिया में कोई भी मज़हब नहीं है और ना ही किसी मज़हब को इख्तियार करने की इजाज़त है। जो आप लोगों को इंटरनेट पर सर्च करने पर मज़ाहब नज़र आएंगे, वो मज़ाहब भी आपको शुमाली कोरिया जाने पर नज़र नहीं आएंगे। शुमाली कोरिया में मखसूस लोगों को ही मुल्क से बाहर जाने की इजाज़त है। आम शहरियों को तो ये भी नहीं पता होता कि पासपोर्ट चीज़ क्या है और ना ही शहरियों को
मुल्क से बाहर कॉल करने की इजाज़त है। अगर कोई कॉल करता पकड़ा जाए तो उसे सज़ा का सामना करना पड़ता है। अलबत्ता शुमाली कोरिया में फैक्स मशीनें मौजूद हैं जो दीगर ममालिक को पैगामात भेजने के लिए नहीं बल्कि जनूबी कोरिया को धमकियां भेजने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। जनूबी कोरिया को सबसे ज़्यादा ख़तरा भी शुमाली कोरिया से है, क्योंकि शुमाली कोरिया का कोई एतबार नहीं कि वो जनूबी कोरिया पर किस वक्त हमला कर दे। शुमाली कोरिया की डोमेन .kp है, जहां दुनिया के दीगर ममालिक की हज़ारों की तादाद में कंट्री डोमेन होती हैं, वहीं शुमाली कोरिया की कंट्री डोमेन की तादाद 2016 तक सिर्फ 28 थी। पूरी दुनिया में मलेशिया और सिंगापुर दो ऐसे ममालिक हैं जिन्हें शुमाली कोरिया की जानिब से वीज़ा फ्री किया गया है, क्योंकि इन दोनों ममालिक ने हमेशा से कोरिया की अंदरूनी तरफ से मदद की है। बिल गेट्स की कुल आमदनी शुमाली कोरिया की कुल आमदनी से 4.5 गुना ज़्यादा है। जिस तरह शुमाली कोरिया का कानून पूरी दुनिया से अलग है, बिल्कुल ऐसे ही बहुत से काम शुमाली कोरिया पूरी दुनिया से अलग करता है। जैसे 2011 में शुमाली कोरियन माहिरीन ने एक रिपोर्ट तैयार की थी जिसमें दुनिया में चाइना के बाद शुमाली कोरिया को दुनिया का सबसे हैप्पीएस्ट मुल्क बताया गया था। जिस तरह मैंने आपको बताया था कि शुमाली कोरिया में वोट भी अलग तरह से होते हैं, हर शहरी को वोट डालना लाजमी होता है, जबकि दिलचस्प बात यह है कि ज़्यादातर हलकों में एक ही उम्मीदवार खड़ा होता है, यानी उसकी जीत तो वैसे ही लाजमी होती है। फुटबॉल, टेबल टेनिस, जिम्नास्टिक, बास्केटबॉल और बॉक्सिंग ये खेलें ज़्यादा शौक से शुमाली कोरिया में खेली जाती हैं। 2008 में शुमाली कोरिया में तालीम की शरह 77% थी, मगर 2017 में लगाए गए एक अंदाजे के मुताबिक ये 100% रिकॉर्ड की गई है। शुमाली कोरिया के इन सख्त कवानीन की वजह है या कोई और वजह है जो गैर मुल्की सियाहों को शुमाली कोरिया आने से रोकती है, क्योंकि दुनिया के दीगर ममालिक में जहां लाखों करोड़ों की तादाद में सियाह सफ़र करते हैं, वहीं शुमाली कोरिया में हर साल सिर्फ चंद हज़ार के सिवा कोई भी नहीं आता। शुमाली कोरिया के बारे में अगर हम बातें ढूंढने लग जाएं तो इस मुल्क के सख्त कवानीन ही इतने ज़्यादा होंगे कि 1 घंटे की वीडियो भी कम पड़ जाएगी। वक्त की कमी की वजह से आज की इस वीडियो का यही इख्तिताम करते हैं। वैसे भी मैं आप लोगों को शुमाली कोरिया जाने का मशवरा नहीं दूंगा और ना ही मैं आपको वहां के तफरीही मकामात दिखाऊंगा, क्योंकि शुमाली कोरिया में हलाल फूड हासिल करना भी नामुमकिन ही है। अगर कहीं मिल भी जाए तो इसकी कीमत ही आपको वापसी का टिकट करवाने पर मजबूर कर देगी। दोस्तों, ये थी वीडियो दुनिया के सबसे पुरअसरार मुल्क शुमाली कोरिया के बारे में। आज की ये वीडियो अगर आप दोस्तों को पसंद आई हो तो इस वीडियो को व्हाट्सएप और फेसबुक वॉल पर शेयर करते हुए अपनी पसंदीदगी का इजहार करें। मेरी हौसला अफजाई के लिए लाइक का बटन भी प्रेस कर दें। अगली वीडियो तक अपने इस दोस्त मोहम्मद नबील को इजाज़त दें। अल्लाह निगहबान।